Okay, let's just begin. Because right. Okay, a 9-month-old unvaccinated girl has been brought to the outpatient department. Can you repeat the investigations for congestive cardiac failure? Yes, I can. Number one, bed rest. Number two, upright, semi-upright position. Three, increase feeding के लिहाज से increase daily calories. Four, salt restriction. Five, prophylactic antibodies. Six, diuretics to relieve the edema. Furosemide दे सकते हैं. Then digoxin. The next one is digoxin, drug of choice in congestive cardiac failure. ठीक है. उसके अलावा you can also give inotropic drugs such as dopamine and dobutamine. These are used especially when the blood pressure is very low or if the urine output remains very low या फिर above measures के ऊपर response adequate नहीं है. ठीक है. ये basic इसकी point form में treatment है. ठीक है. This is all written in on page number 333 and 334. Okay, next hai, a 9-month-old unvaccinated girl has been brought to the outpatient department with low-grade fever, coryza, bouts of cough for the last 12 days, and she received a treatment by a general practitioner who prescribed 5 days course of amoxicillin and cough syrup. She's also having apneic episodes and sometimes vomits after an episode of cough. I want you guys to look at that. Vomits after an episode of cough. Okay. She has HP 11.9. Her white cells are reduced. Differential uska hai. Count hai. Neutrophils 29. Lymphocytes 66%. Hanji, lymphocytes aapko kya bata rahe? And then platelet is okay. Blood film, no blasts. Chest X-ray shows linear atelectasis and mild hyperinfiltrated bilateral. Hyperinflated होना चाहिए bilateral upper zones. What's happening? जब lymphocytes ज़्यादा हो तो कौन सी infection होती है? Bacterial या viral? जल्दी बताएं. न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो तो हम बैक्टीरियल की तरफ सोचते हैं. जब lymphocytes ज़्यादा हो तो हम viral की तरफ सोचते हैं. ठीक है ना? और फिर ये जो vomits after an episode of cough है ना, और वो unvaccinated है, ये एक specific viral infection है जिसके तरफ ये point कर रहा है. Can anybody guess? माइक्रो में पढ़ चुके हैं हम अच्छे से. This is pertussis. ठीक है. Pertussis में ये बहुत इसकी specific finding है कि vomits after an episode of cough. What is the most likely diagnosis pertussis? How would you confirm your diagnosis? आप nasopharyngeal swab लेंगे और उसका आपने culture कर लेना, आपको पता चल जाएगा. And see what are the 4 major complications of this disease. 4 complications इसकी हैं. एक तो bronchopneumonia है हमारे पास और उन्होंने atelectasis भी mention किया हुआ है. Bronchopneumonia हो गया, दूसरा atelectasis हो गया, तीसरा इसकी वजह से encephalitis भी हो सकता है which leads to convulsions and coma. उसके अलावा इसके ऊपर superadded bacterial infection की वजह से otitis media हो सकता है, sinusitis हो सकता है. This is all on page number 204. So if you want to read up pertussis and all about it, ठीक है. ये थोड़ा atypical सा question था. ऐसे मैंने ज़्यादा questions नहीं देखे. Right, let's move on to the next one. And आपने मुझे फौरन इसका बताना है. 16-month-old has a history of loose motion for the last 20 days. He has history on and off vomiting but refused to take orally for the last 1 day. On examination, he is lethargic with rapid breathing and tachycardia. He drinks poorly. His skin pinch goes back very slowly. Sunken eyes and he weighs 10 kgs. Give diagnosis, give plan of management, write 4 complications. Perfect. Severe dehydration है, moderate नहीं है ये. ठीक है. Skin pinch goes back very slowly. He has sunken eyes. Okay.
Right, let's just open up that chapter and read the differences between a moderate and a severe one. ठीक है, तो I may be wrong, but let's just read it out ताकि हमें clear हो जाए उसमें दोनों में differences क्या हैं. किधर गया? 180 पे होना चाहिए शायद. 183 पेज है. ठीक है. सम डिहाइड्रेशन लिखा है और severe डिहाइड्रेशन लिखा है. सम मतलब माइल्ड, मॉडरेट है और severe मतलब. ठीक है, तो मॉडरेट में क्या हो रहा है? रेस्टलेस, इरिटेबल है, sunken eyes है, drinks eagerly, thirsty है, skin pinch, goes back slowly. severe डिहाइड्रेशन में है lethargic या unconscious, sunken eyes हैं, not able to drink or drinking poorly है, skin pinch, goes back very slowly. तो this is severe. अच्छा, ये आप लोगों ने ऐसे याद किया है कि अगर चाइल्ड ड्रिंक कर रहा है तो इट्स नॉट सिवियर. बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. अगर उसको पता है कि उसको प्यास लगी है तो देन इट्स ईदर माइल्ड और मॉडरेट, मोस्ट प्रॉब्ली मॉडरेट. ठीक है, अगर वो इसका लाइक थर्स्टी जैसे है और वो ड्रिंक कर रहा है तो वो फिर मॉडरेट है. अगर वो या नॉट एबल टू ड्रिंक है या वो पोरली ड्रिंक कर रहा है तो वो सिवियर में आता है. ठीक है, या पेज 183 पे देख लें इसके डिफरेंसेस, मैंने आपको भी पढ़ के सुनाए हैं. ठीक है, तो ये पक्का सिवियर ही है डिहाइड्रेशन. हाँ जी, गिव प्लान ऑफ मैनेजमेंट हम ये डिस्कस कर चुके हैं. फ्लूइड कैसे देने हैं? अब ये 16 मंथ ओल्ड बॉय है, मोर देन 12 मंथ है ये पेज 185 के ऊपर छोटा सा ऐसे बॉक्स बना हुआ है, टेबल 10.8. तो इन्होंने बताया हुआ है लेस देन 12 मंथ्स का हम मतलब टोटल हमने क्या देना, हमने रिंगर्स लैक्टेट देना है आईवी. ठीक है, इमीडिएटली स्टार्ट करना है और हम 100 ml पर केजी टोटल देते हैं. अब 100 ml पर केजी का एज के हिसाब से डिवाइडेड है. लेस देन 12 मंथ्स को हम फर्स्ट आवर में 30 ml पर केजी देते हैं और अगले 5 घंटों में 70 ml पर केजी. हाँ जी, बट बिकॉज ये मोर देन 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स टू 5 years के चिल्ड्रन में हम फर्स्ट 30 मिनट्स में 30 ml पर केजी देते हैं और फिर अगले 2.5 hours में, मतलब हमने टाइम को हाफ कर दिया. ठीक है, अगले 2.5 hours में 70 ml पर देते हैं. तो अब इसका वेट उन्होंने बता दिया है 10 kg, तो उस हिसाब से 300 ml फर्स्ट 30 मिनट्स में एंड देन द रेस्ट ऑफ इट जो 700 ml है वो नेक्स्ट 2.5 hours में आ जाएगा. ठीक है ना? ओके, राइट. 4 कॉम्प्लिकेशंस हैं. सिवियर डिहाइड्रेशन की कॉम्प्लिकेशन हमने तो डिस्कस करनी है. शॉक में जा सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या पैरालिटिक आइलियस हो सकता है, कोई भी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट का बता दें, कन्वर्जन्स का बता दें, सुपरएडेड इन्फेक्शंस का बता दें, किडनी फेलियर बता दें. ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस, सारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस. राइट. 4 5 इधर लिखा 5 ये हो चुका है, ये भी हो चुका है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है 4-year-old boy presented in OPD with complaints of periorbital swelling, abdominal distension for last 1 week, no urinary complaint or family history of renal disease. On examination, weight is 18 kg and height is 102. Okay, BP 90/60. Oh, he was comfortably lying with no jaundice or respiratory distress. His ankle edema was positive with free fluid in the abdomen. His renal function tests are normal. 6 labs for this child define remission, steroid dependent and frequent relapsers, and write 4 complications of this disease. क्या है ये इसको? Okay, somebody has said minimal change disease. You can think of it minimal change disease है उसको, या फिर आप simply सोच सकते हैं okay, this guy is nephrotic. ठीक है, इस nephrotic syndrome. उसका renal function test उसके ठीक है, उसकी kidneys नहीं fail हो रही, बस उसका protein बहुत lose हो रहा है. ठीक है, तो और obviously इस age की वजह से हम we think the first disease we think of is minimal change until proven otherwise. ठीक है, अब 6 lab investigations लिखे हैं उसकी. नेफ्रोटिक के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे आप?
सबसे पहले आपने जो है ना यूरिन वाली इन्वेस्टिगेशन से शुरू करना है। उन्होंने यूरिन डिपस्टिक नहीं कराई हुई, उसके ऊपर +3 या +4 आएगा आपका। 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन मोर देन 3.5 आना चाहिए आपका। उसके बाद आप सीरम पे जा सकते हैं, सीबीसी कराएं, सीरम एल्ब्यूमिन आपका कम आएगा, सीरम टोटल प्रोटीन करा लें। उसके बाद आप EMUA, I don't understand what that means. 6 इन्वेस्टिगेशन में गिनवाई है कि नहीं? अगली फिर रीनल बायोप्सी, हाँ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं, रीनल बायोप्सी करा सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या रीनल बायोप्सी कराएंगे। उसके ऊपर फिर बाद में आपको लाइट माइक्रोस्कोपी पे नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे मिलेंगे चेंजेस पोलोसाइट्स में आपके। ओके, तो ये हो गई, आई थिंक 6 से ज़्यादा ही हो गई इन्वेस्टिगेशंस। पेज 541 for reference. Define remission, steroid dependent and frequent relapsers. तो बहुत ही बुरा सवाल है। इसकी डेफिनेशंस हैं स्पेसिफिक, और ये हैं पेज नंबर 542 के ऊपर इसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, रिमिशन मींस के उसका जो यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो है वो लेस देन 0.2 है, या फिर लेस देन 1+ प्रोटीन ऑन यूरिन डिपस्टिक फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज। ये इसकी डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, रिमिशन का क्या मतलब है? यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो ऑफ लेस देन 0.2 और लेस देन 1+ प्रोटीन ऑन यूरिन डिपस्टिक फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज। फिर हमारे पास स्टेरॉइड रेजिस्टेंट, स्टेरॉइड इन्होंने डिपेंडेंट पूछा, सॉरी। स्टेरॉइड डिपेंडेंट वो होते हैं जो, अच्छा इन्होंने इसकी डेफिनेशन नहीं यहाँ लिखी हुई, बस स्टेरॉइड डिपेंडेंट वो होते हैं जो whenever the steroid therapy is removed, उसके वो चले जाते हैं रिलैप्स में, मतलब उनकी कंडीशन वापस वर्स हो जाती है उतनी ही जितनी पहले थी। तो विदाउट स्टेरॉइड वो क्योर नहीं हो पाते हैं। फिर फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस हमारे पास क्या है? अगेन यहाँ पे एक डेफिनेशन बनी हुई है। Responder who has 2 or more relapses in 6 months or 3 relapses in 1 year. ठीक है, 2 or more relapses in 6 months या 3 relapses in 1 year. तो ये आपको याद करना पड़ेगा। And then write 4 complications of this disease. हाँ जी, complications क्या हो सकती हैं? Anybody? Nobody? Okay, you can have superadded infections हो सकती हैं, इनके अंदर आपके पास spontaneous bacterial peritonitis के cases बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा एडिमा की complications हैं, एक तो hypotension develop हो सकती है बहुत easily because there third spacing हो रही है fluid की सारी। उसके अलावा hyperlipidemia हो जाता है nephrotic syndrome में, उसके आगे manifestations हैं आपके पास। ठीक है, फिर रीनल फेलियर जा सकता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज में जा सकता है, और इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इवेंचुअली जो अंडरलाइंग जैसे फ्लेयर अप हो सकता है, टीबी का फ्लेयर अप हो सकता है, या फिर कोई भी जैसे कोई डिजीज है, ऑलरेडी आई मेंशन्ड कि सुपरएडेड इन्फेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, हाँ थ्रोम्बोसिस समबडी हैज सेड, हाँ थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है इसलिए। तो ये सारे आप इसका सोच लें। ठीक है, जब भी आपसे इस तरह कॉम्प्लिकेशन सोचे ना, थिंक कि ये इसमें हो क्या रहा है, बिकॉज हमारे हाँ ग्रोथ रिटार्डेशन, एग्जैक्टली समबडी हैज आल्सो एडेड दैट। तो जस्ट थिंक कि इस डिजीज का कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एंड वेयर विल इट गो। ठीक है, आई थिंक कि जब आप एग्जाम में देखते ना, वो लाइक ओहो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, अब हम क्या करें। तो जस्ट थिंक ऑफ लाइक द पैथोफिजियोलॉजी एंड देन ट्राई टू फिगर आउट। अब किडनी इफेक्ट हो रही है तो फिर रीनल फेलियर तो होगा ना। अब नेफ्रोटिक के बारे में हमें हाइपरकोएगुलेबिलिटी और हाइपरलिपिडीमिया के बारे में पता है, और बिकॉज अब ये बच्चा है और उन्होंने ऑलरेडी उसका हाइट वेट वगैरह मेंशन किया हुआ है, और फिर देखें उसका बीपी, तो यहाँ से आप हाइपोटेंशन उठा लें कॉम्प्लिकेशन, यहाँ से आप ग्रोथ रिटार्डेशन की कॉम्प्लिकेशन उठा लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने इस तरह फिगर आउट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू गाइज डोंट गेट दिस आई विल बी वेरी वेरी अपसेट। ठीक है, a 5-year-old child presented in pediatric emergency with history of breathlessness for 1 day and fever for 5 days. He was complaining of palpitations and difficulty in lying down. He had sore throat 1 month back. On examination, he was tachypneic and with shortness of breath. Heart rate is 120, BP 100/70.
Cardiac examination pe first heart sound was soft and there was a pan-systolic murmur at the apex with bilateral crepitations in the chest. His joints were not painful or swollen. He had firm nodules along the spine and no skin rashes. His anti-streptolysin O titer was 350. What is the most likely diagnosis? Diagnosis बताएं. एक बंदे ने बताया अभी फिलहाल. दो लोगों ने बताया but different answer आ रहा है. I'm waiting for the rest. Just guess something. Just guess anything. जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपके दिल में आ रहा है, बस say it. Okay. So for everyone who said rheumatic fever, you're absolutely correct. This is acute rheumatic fever. और ये ASO titer से आपको पता चल रहा है. ठीक है. जब हमारे पास 333 यूनिट्स होते हैं ना तो जरा वो बॉर्डर लाइन सिग्निफिकेंस का होता है. बट बिकॉज इसके अंदर अब 350 और 333 से ऊपर भी चला गया है एंड इट हैज द अदर मैनिफेस्टेशंस एज वेल. इट हैज they have nodules as well, pan-systolic murmur भी आपको मिल गया है. ठीक है. और क्या है इसमें उसकी चीजें. Okay, justify your diagnosis on the basis of history given. Because sore throat की history थी 1 month back और कार्डियक एग्जामिनेशन के ऊपर आपको पैन-सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है. ठीक है. फिर जॉइंट्स तो नहीं है खैर, लेकिन उसके अंदर ये नोड्यूल्स हैं. ठीक है. तो आपका ये जोन्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है. और फिर फीवर आपका नॉन स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो माइनर क्राइटेरिया था उसके अंदर आपके पास फीवर भी आ जाता है. ठीक है. तो इफ एनीबडी वांट्स टू लुक एट द क्राइटेरिया, ये पेज 232 के ऊपर आपके पास. वैसे जोन्स तो आपको मेजर क्राइटेरिया तो याद होगा ही. See what are the 4 investigations you will carry out and how long will you give medicine for prevention of recurrence. 4 investigations में आप CBC करा लें, आपको फिर आप ECG करा लें, echo करा सकते हैं, chest x-ray करवा सकते हैं, culture करवा सकते हैं. तो 5 हो गई हैं. ठीक है ना. And then आप वो कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक कर सकते हैं. वो भी आपके नॉन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में था. तो सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है, ESR ज़्यादा हो सकता है. उसके अलावा क्या कहते हैं, ECG के ऊपर आपको मायोकार्डाइटिस वगैरह पता चल जाएगा. CBC के ऊपर आपको एनीमिया पता चलेगा. थ्रोट स्वैब कल्चर के ऊपर आपको ऑर्गेनिज्म पता चल जाएगा. EEG? No, ECG I said. I said ECG. And then आप echo करा सकते हैं, उसके आपके valves वगैरह सब नजर आ जाएंगे. X-ray chest आपको या congestive failure वगैरह like cardiac enlargement मिल सकती है या pericarditis मिल सकता है, whatever it is. ठीक है. So there's all the investigations that you can do. So before doing the next 2 papers, can we just like take a 5-minute break and then we'll get back to them. ठीक है. अब next काफी question repeat होंगे. तो inshallah we will do that quicker. ठीक है ना. So just like a 5-minute break until the 8:40 हैं तो 8:45 तक.